Hello everyone, my dear friends, my dear students, and hello to everyone, those who are watching this video. I hope everybody is fine. Uh, now, this my name is Vipin Yadav, and you're watching Geeta Yadav channel. There I am taking maths classes. Uh, my initiative is to make students feel comfortable while solving different topics. Actually, I'm just trying to clear the concepts which are required to be cleared while solving the questions. So here in my previous lecture or video, if you have not seen, you can go to Geeta Yadav channel. You can write in the YouTube search column Geeta Yadav Vipin Maths, and then you will get that Geeta Yadav named channel, and there I have uploaded 4 videos till now, and the 5th video is in continuation with the 4th video only. In that 4th video, we talked about the area of parallelogram. I have discussed what is parallelogram and how do we deduce or how do we formulated the formula of area of parallelogram. Alright, now we did this parallelogram. Now we will be talking about the triangle and rhombus in this video. These two have to be discussed today. Alright, and in the next video I'll discuss this 4th and 5th one. These are little bit lengthier, so I have decided to keep them in the next video, which will be uploaded in a day or two. Alright, and with that video we'll be able to complete this topic. It is actually very important in classes 6, 7, 8, as well as in 9th also, when you study the chapter mensuration. So these area problems are there, and to understand, to solve these types of problems, you need to understand the figures, and you need to know from where the formula has come. Okay. So alright, now let's start with the triangle. Now since you have studied for the parallelogram, this is a parallelogram. Okay. And I have told you what is the formula for area of parallelogram. This is parallel, GM for gram. Alright, this is a short form, right? Parallelogram. It was base into height. Now height, the other name for height is also as we call it as altitude. Okay, और कुछ लोग altitude भी कहते हैं, वैसे क्या कहा जाता है altitude? Altitude मतलब कितनी ऊंचाई, या फिर आप कह सकते हो कोई फिगर कितना ऊंचा है, उसकी हाइट क्या है, वही altitude. तो एरिया ऑफ पैराग्राम होता है बेस इनटू हाइट, और मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत रिवाइज करता हूँ. ये जो लेंथ है जिसपे ये लग रहा है कि ये पैराग्राम खड़ा है, इस वाली लेंथ पे, इस वाली लाइन पे, जैसे ए बी सी, तो ए बी जो है हमारा बेस हो जाएगा. इसकी जो भी लेंथ होगी, लेट्स से 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. तो बेस इसका 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर. और बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस, मतलब यहाँ पे जो समझ नहीं आता बच्चों को, हाइट. आप कोई भी एक पकड़ लो वर्टेक्स, ठीक है, और उस वर्टेक्स से आप उस वर्टेक्स के जो सामने आपको दिखे लाइन, तो वो अपोजिट साइड हो जाएगी उस वर्टेक्स की. तो अगर मैं इस वर्टेक्स को यहाँ पे नोट करता हूँ, तो इसके अपोजिट जो लाइन दिख रही है वो क्या है, ए बी है, तो ये बेस हो जाएगा. ठीक है, इस वर्टेक्स से आप ए बी पे एक लाइन बनाएंगे, और उस लाइन का जो एंगल होगा बेस से वो 90 डिग्री का, ये जो है 90 डिग्री ड्रॉ करता है. let's say height is
2 सेंटीमीटर, इसको मान लो ओके। सो एरिया क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब तो पता ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर सिर्फ सेंटीमीटर क्यों। तो ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ पैराग्राफ। इसी से जुड़ा हुआ, इसी से आप रिलेट करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, लेट्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ना यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बेस यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर मैं ये बेस ले लूँ तो जो वर्टेक्स होगा इसके अपोजिट जो भी आपको दिख रहा है, लेट्स से ये दिख रहा है तो यहाँ से आप लाइन इस पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे उस लाइन का इस लाइन से 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट नाउ। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखूंगा ताकि आप हमको और अच्छे से दिखे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद ट्राइंगल। एरिया हम लोग डिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, डिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ ओनली। लेट्स ड्रॉ अ पैराग्राफ। लेट्स ड्रॉ पैराग्राम लग रहा है, नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत ये एक्सटेंड हो गया उस तरफ। अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको फील हो। फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसको फील करने की कोशिश करें, ठीक है, ट्राई टू फील इट। देखिए हर क्वेश्चन में आप फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं कि जैसे वो एक तरह से आपको केस है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो यू हैव टू फील। और जब भी आप फिगर ड्रॉ करें तो उसको बड़े फीलिंग से ड्रॉ करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। सो एंड उसको नीटली विद द स्केल ये सब चीज करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, अच्छा फील होगा। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेने लगोगे। तो ये तरीके होते हैं इंटरेस्ट डेवलप करने का। लेट्स ड्रॉ पैराग्राफ। एक लाइन बनाई सीधी, उसको मैंने नाम दे दिया AB। नेक्स्ट लाइन थोड़ा सा, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, लेट्स से ABCD। A को मैंने D से ज्वाइन किया, B को मैंने C से ज्वाइन किया। अब पैराग्राम में आपको पता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मींस ये साइड पैरेलल हो गई एक दूसरे के और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ये तो मैंने बता दिया था। मैं यहाँ पे एक चीज आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा। Now we will draw two diagonals. Diagonals कोई भी फिगर के वो होंगे जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अपोजिट वर्टेक्स क्या होंगे, देखिए इसको ले लेते हैं। जैसे A है, एक बंदा है यहाँ पे खड़ा है, इसके बगल में दूसरा बंदा B खड़ा है, उसके बगल में C खड़ा है और उसके बगल में D खड़ा है। तो A के जितने भी बगल में हैं, मतलब जितने भी नेक्स्ट हो गए एक तरह से। So for this A, this B vertex is just next, because when you start moving from A towards B, you don't have any other vertex here. So B is just next to A. So this B is adjacent to A, not opposite to A. Similarly, D is also adjacent to A. Why? Because if you start moving from A to D, there is no other vertex between A and D. So A and D are the adjacent vertices. Now the vertices which are not adjacent, those are those are opposite vertex. And the line which join the opposite vertices is a diagonal. Okay.
Let's draw a diagonal. Let's take any diagonal. So for if I say this is the A, so opposite vertex of this A will be C. Because when you start reaching from A towards C, so you will first cross this D vertex. Okay. So this vertex is coming between the path of A and C. So this is your adjacent vertex to A, but whatever is not adjacent, that will be treated as opposite. So AC, let's say AC, this is your diagonal. And similarly, you can draw diagonal DB also, but I am not going to draw here. I am going to take this example as a you can say base to find out the area of a triangle. Now, what was the formula for area of a parallelogram? Base into height. Yes or no? Fine, alright. Base into height. Now, parallelogram में जो diagonals होते हैं, they are going to divide a parallelogram into two equal triangles. जब मैं equal triangle कह रहा हूँ तो हर respect में equal होंगे. Okay? उनके एंगल, दो ट्राइंगल्स होंगे तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे, साइड भी कर सकते हो इक्वल. तो ये जब कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं. अभी के लिए इतना सोच लीजिए कि वो जो ट्राइंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे हर चीज़ में. तो अगर हर चीज़ में इक्वल होंगे तो पेरीमीटर में भी इक्वल होंगे, एरिया में भी इक्वल होंगे. So now see, this whole parallelogram has been divided into two triangles. Means this whole area has been divided into two equal areas. So can I say area of a triangle is nothing, it is just the half of the area of parallelogram. ये तो कह सकता हूँ ना, कह सकता हूँ नहीं कहता हूँ भाई. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? बेस इनटू हाइट. यहाँ पे पैरेललोग्राम को मैंने दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? बेस इनटू हाइट. सो अब इस जगह मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह क्या लिखूंगा? बेस इनटू हाइट. ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है एरिया ऑफ. This is my basic formula for area. अब यहाँ पे जो सोचने वाली बात है वो बेस और हाइट की बात है. ठीक है, जब आप पैरेललोग्राम ले रहे थे तो हाइट वहाँ पे डिफरेंट आ रही थी. ठीक है, बेस वहाँ पे डिफरेंट आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला डायगोनल लिया है तो आपको आसानी होगी समझने में. ठीक है, क्या मैं कहना चाहता हूँ? तो बेस और हाइट की बात हो रही है. तो पैरेललोग्राम में बेस क्या था? ये था BC. लेट्स से मैं ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ. ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ. तो इसमें जो है बेस क्या हो जाएगा आपका? DC. इसको भी भूल जाओ, ये वाला ट्रायंगल को भी भूल जाओ. मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? ट्रायंगल ADC. ठीक है, ट्रायंगल का सिंबल ADC, इसके वर्टिसेस. दिस इज द वे टू राइट द नेम ऑफ अ ट्रायंगल. इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट. चलिए हाफ तो मैंने लिख दिया. ठीक है, बेस. अब जो बेस होगा उस इस ट्रायंगल को पकड़ के आप रखिएगा. तो बेस क्या होगा? DC. अब हाइट आपको ड्रॉ करनी होगी. ठीक है, हाइट आपको ड्रॉ करनी होगी. इस ट्रायंगल में हाइट क्या होगा? अपोजिट वर्टेक्स से बेस पे एक लाइन बनाए और उसका एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए. तो ये जो हाइट है, ये हाइट है एक्चुअली आपकी ट्रायंगल की. किस ट्रायंगल की? इस ट्रायंगल की. अगर मैं सेकेंड वाला ट्रायंगल लेता हूं तो सेकेंड वाले ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल, तो हाइट आप ऐसे बनाएंगे. अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे, क्या AE और CF सेम रहेंगे? ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि ये जो दो लाइन्स हैं AB और DC पैरेलल लाइन्स हैं.
और मैंने कहा था पैरेलल लाइंस में क्या है, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विल ऑलवेज रिमेन सेम. So therefore, and the shortest distance between two parallel lines is what? A perpendicular line. A line which is perpendicular to both the parallel lines. So AE and CF, they will be equal in values. Fine. Now I have a question. Is DC equals to AF? Because for this triangle base is DC, but for this triangle base is AB. So are DC and AB equal? Yes, obviously, because it's a parallelogram and opposite sides are parallel and equal. Okay, so therefore AB is equals to DC. So can I write as the triangle CBA as half, base is what? AB into height is what? CF. I have these two. और मैंने क्या कहा था कि ये जो डायगोनल है इन दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा. यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं. ठीक है, जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीए, ये. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डीसी और एबी, मैंने आपको पहले बता दिया डीसी और एबी क्या होंगे? इक्वल होंगे. हाफ हाफ तो इक्वल हो गई. अब आते हैं एई और सीएफ. एई और सीएफ भी इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विल ऑलवेज रिमेन सेम. सो कैन आई से दैट दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट आर इक्वल? यस और नो? So therefore, can I say that the area of this triangle and this triangle are equal? So can I verify that the diagonal of a parallelogram is going to divide a parallelogram into two equal areas? ये मेरा पहला स्टेटमेंट था. हमने डिवाइड मतलब प्रूव भी कर दिया कि हाँ एक्चुअली में ये होता है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया. क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज बेस इनटू हाइट. ठीक है, वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी तो रख लो. नहीं समझ में आ रहा है, क्लास 9 में पढ़ाएंगे तो आ जाएगा. अभी के लिए क्या है फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट. एंड यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हाट बेस यू आर गोइंग टू टेक एंड हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द हाइट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आता है rhombus. Now rhombus is a quadrilateral, okay, whose all the sides are equal. All right, whose all the sides are equal and whose interior angles are not 90 degree. एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है rhombus की कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे. हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ rhombus क्या होता है. ये मैं क्यों करा रहा हूँ आपको, मतलब फॉर्मूला ऐसे चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ. बता दिया, हो गया काम खत्म. क्वेश्चन सॉल्व कर लो. क्वेश्चन तो आप भी सॉल्व कर लोगे, आप बहुत बड़े हो गए हो. ठीक है, कोई बुक ले लो, स्टैंडर्ड बुक, कुछ भी, एनसीईआरटी, गोयल, कोई भी बुक ले लो जो आपके स्कूल में चल रही है. और जैसे मैंने आपको समझाया है, फॉर्मूला समझा दिया, उस पर कैलकुलेशन यूज कर लो, कैलकुलेशन कर लो, कोई भी चीज़. ठीक है, समझने के लिए आपको नए वीडियो से एरिया ऑफ rhombus. देखिए rhombus को हम लोग पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो साइड्स, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं. लेकिन जो rhombus होता है उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो लेट्स से अगर मैं ये पैरेललोग्राम बना दिया आपको, ठीक, लेट्स से ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 होगा. लेट्स से ये है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर. तो ये पैरेललोग्राम है, rhombus नहीं.
क्यों रॉम्बस नहीं है? क्योंकि साइड्स डिफरेंट है, अपोजिट साइड्स इक्वल तो होंगी, लेकिन ये 7 और ये 10 है, तो ये तो इक्वल नहीं है ना। तो क्या करेंगे, रॉम्बस को हम क्या कहेंगे, लेट्स से अगर ये भी 10 होता, ये भी 10 होता, तब ये होता रॉम्बस। लेकिन रॉम्बस दिख नहीं रहा एक तरह से। ये अब इसको थोड़ा मैं साइड को लंबा कर देता हूं। ठीक है, इसको मैंने मेंशन कर दिया, तो सारी साइड्स इक्वल है। रॉम्बस में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। यूनिक क्या कह सकते हो कि एक तरह से वो स्क्वायर में भी प्रॉपर्टी होती है, वही सेम चीज। इसका जो डायगोनल्स होता है, एक ही डायगोनल होगा क्योंकि डी और बी अपोजिट है, क्योंकि सी हमारा है बीच में आ गया, तो ये दोनों एडजस्टेंट हो गए, तो ये अपोजिट हो गया, ठीक है। सिमिलरली ए सी, तो इन दोनों के बीच का एंगल से यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, सारे एंगल। ये 90 डिग्री के, ठीक है। तो मैंने एक कहानी बताई आपको कि रॉम्बस मतलब कैसे है, एक तरह से क्या होता है एक्चुअली। तो अब आप एरिया पे हम लोग फोकस करेंगे। किस पे करेंगे फोकस? एरिया ऑफ रॉम्बस। देखिए अगर मैं एक, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, लेट्स से ये लाइन मैंने हटा दी, ये वाला डायग्राम हमने हटा दिया। सॉरी, ये डायग्राम नहीं, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ वरना कंफ्यूजन आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ रॉम्बस में अगर मैं डी बी को लूँ डायगोनल, तो एक अबव ट्रायंगल हो गया, एक बिलो ट्रायंगल हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा। और मैंने कहा है कि पैलोग्राम में डायगोनल्स जो है, पैलोग्राम को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। सिमिलरली रॉम्बस भी आपका एक तरह से पैलोग्राम है, तो उसका डायगोनल भी उस रॉम्बस को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, उनका एरिया जो है इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। तो अगर मैं ट्रायंगल ए डी बी की बात करूँ, इसको मैं मान लेता हूँ ओ, लेट्स ट्रायंगल ए बी डी, लेट्स से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी। एरिया ऑफ रॉम्बस क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी, ये लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि एरिया ऑफ रॉम्बस क्या होगा? दिस प्लस दिस, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये तो होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी डी एंड एरिया ऑफ डी सी बी, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे रॉम्बस मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रॉम्बस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। अब देखिए ए बी डी जो है आपका, ए बी डी ये एक ट्रायंगल है, और अगर मैं देखूं ट्रायंगल है तो, और मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूं, ऊपर वाले की बात करूं, नीचे वाला भी आप भूल जाएं, ठीक है। तो इसमें ऑल्टीट्यूड क्या होगा, मींस हाइट क्या होगी इस ट्रायंगल की? क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? आप यहाँ पे देखिए और उसको देखिए, ये विजुलाइज करने से आएगा, मतलब आपको इमेजिन करने से आएगा। तो मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया आपको एक्चुअली।
क्या मैं कह सकता हूँ इस जो ट्राइंगल है इसकी हाइट इतनी है, जैसे माउंटेन पे आप जाते हैं, माउंटेन इसी हाइट ऐसे ही तो होता है ट्राइंगल शेप में, तो उसकी हाइट हम लोग इस लाइन से देखते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, कितना हाइट है। तो जिस लाइन से आप देख रहे हो वो क्या होगा, आपका बेस होगा। तो यहाँ पे जो डी बी है वो बेस होगा। और यहाँ पे हमने श्योरिटी के साथ कैसे कह दिया, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स से जो भी लाइन आ रही है उसका एंगल इस बेस से 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये बेस होगा और ये आपका क्या होगा, हाइट। तो लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज हाफ बेस, बेस इज व्हाट, डी बी, हाइट क्या है, ए हो। ओके, सिमिलरली मैं नीचे वाला भी ट्राइंगल ले लूं, इसके लिए हाइट क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे आप ये मत कहिएगा कि सर ये तो खड़ा तो इस पे, बेटा ये ओरिएंटेशन हो सकता है, ठीक है। हम किस पे फोकस करेंगे, ऑपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन जिस लाइन पे जा रही है उसको बेस लेंगे। अब यहां से कोई लाइन जा नहीं रही है क्योंकि यही ट्राइंगल है पूरा, ये वाला ट्राइंगल। अब मैं इसको हटा दूं, अगर अब मैं क्या करूं, अब इसको मैं अगर मैं इसको ऐसे ऐसे टर्न कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल तो बनेगा। मैं आपको टर्न करके दिखा दे रहा हूं। देखिए ये ट्रायंगल नहीं, सी बी डी, सी बी डी। तो ये जो लाइन है ये किस पे आ रही है, बीडी पे आ रही है ना, तो बेस आपका बीडी होगा ना कि सीडी होगा, बेस आपका बीडी होगा। सो हाफ इंटू बेस क्या होगा, बीडी, और हाइट क्या होगी, सीओ, हाइट क्या होगी, सी। अब थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंजमेंट करेंगे हम लोग। हाफ हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। देखिए डीबी और बीडी, डीबी और बीडी मीन्स डीबी, और मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं वापस से डायग्राम, देखिए ये जो डीबी है, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी डीबी आ रहा था और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी डीबी आ रहा है, तो डीबी और बीडी दोनों एक ही चीज है एक तरह से, क्योंकि आप कोई भी लाइन लीजिए जैसे ए बी, तो इसको आप ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। तो डीबी और बीडी बोथ आर सेम थिंग। सो मैंने लेट्स से बीडी कॉमन लिया। अब जो है ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या बचा है, तो इस एक्सप्रेशन से मैंने हाफ और बीडी बाहर ले लिया, तो क्या बचा, ए हो, प्लस इस एक्सप्रेशन से भी तो मैंने हाफ और बीडी बाहर लिया था, वो यहाँ पे आ गया, तो बचा क्या, ओसी और सी हो। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों का सम क्या हो सकता है, डायग्राम देख के बताएंगे आप मुझे। ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस सी ओ, वट एवर। तो ए और सी अपोजिट वर्टेक्स है, ये एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अनदर डायगोनल होगा of rhombus. So can I write half BD into AC? So area of rhombus, can I write half BD into AC? Now what we can write in general term, half into product of diagonals. Yes or no? So this is the area of rhombus. Area of rhombus. देखिए अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो इसको फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वो और एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल के साथ। लेट्स से diagonal of rhombus D1 is 10 centimeter. Diagonal of rhombus, another diagonal of rhombus is let's say 5 centimeter. तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप एरिया ऑफ rhombus क्या करेंगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब D1 इंटू D2, ठीक है। उनकी वैल्यूज लिख देंगे।
हो गया आपका 50 बाय 2 सेंटीमीटर्स, दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं आपको समझ में आया तो दोबारा आप फिर से इसको देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करिए। थैंक यू। और बाकी जो बचे हैं 2 टॉपिक्स उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। May God bless you. Enjoy your everyday moment.